to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this news, we talk about events happening in Mumbai, Maharashtra, and India. In every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Today in Maharashtra, we have flexed problem. Eknath Shinde, Dev Fadnavis government saying that we have done everything where development is concerned. We are taking Maharashtra, Mumbai in a fast-paced to development, fast-paced track to development. Eknath Shinde ji bolte hain ki I have got the Prime Minister's absolute confidence in building Maharashtra up. But that is again a matter of choice where Uddhav Thackeray's Sena and Eknath Shinde's Sena split. Mumbai, BJP says, is totally for development. Maharashtra is for development. Today in our show, we have the guest, Shivani Dani from the BJP, Kishore Tiwari ji from Uddhav Thackeray's Sena, and we got Arshad Azmi ji from the Indian National Congress. Welcome, sir, to the show today. Unfortunately, Mr. Rajiv Bajaj Saab couldn't make it. We'll start from you, Shivani Dani ji. You know, you saw today, Eknath Shinde ji and Dev Fadnavis always claims that Mumbai, Maharashtra is up for development, on the fast track of development. Mumbai, Maharashtra is doing exceedingly well where development is concerned. Now, today, Eknath Shinde also said one particular thing, that he was a witness to the very fact that the Uddhav Thackeray MVA wanted to file cases against Girish Mahajan and Devendra Fadnavis ji. So, how things are, I mean, he says, Eknath Shinde ji bolte hain ki main khud is cheez ke liye witness tha. We start from there. Maharashtrian course of development. Boliye Shivani ji. No doubt, sir. I'm also with my leaders saying that Maharashtra is now for development. I belong to the second capital of Maharashtra. I'm from Nagpur. And I can see in Nagpur and around Nagpur, rather in Vidarbha or in Marathwada or the other parts of state, that whatever was happening in last 2.5 years, the state was standing still, and now in last just 6 months, whatever the development work was going on earlier before 2019, it was standing still for last 2.5 years. There wasn't any as such good movement in that. But in last 6 months, we can see that things are rolling again. Things are rolling back again. And one can always understand, those who understand the figures and economics, if there is a good spending in capital infrastructure, if there is a spending in capital infrastructure, and if there is a good capital infrastructure or capital expenditure, then it gives a real push to the economy. And that is what our leader, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis are doing, that they are focusing a lot on the development, infrastructure, the basic fundamental things, and definitely we will see the positive response and positive signs very soon coming in these days. Kishore Tiwari ji, can I get back to you? I'll get back to you. Kishore Tiwari ji, you have been a very ardent political observer. Rajiv Bajaj Saab would have loved to see you on the show today, but he is unfortunately not here. He's got delayed somewhere, stuck up somewhere. Kishore Tiwari ji, BJP says Maharashtra, Mumbai is a fast pace of development. They say it is seeing development but never seen before. What are your views, sir? Tiwari ji. Pradeep Nambiar, sir. I am Pradeep Nambiar. I could hear your question. What the Shivani Dani told, that I also not heard. Sir, Shivani Dani. Very difficult me. Please clear my sound and then ask me the question, because I'm finding very difficult to listen it also. So, Bhushan ji. Yeah, Arshad ji, you asked something. Arshad Azmi ji, aap dekhen. Arshad Azmi ji, welcome. I am Pradeep Nambiar. You heard Shivani Dani. Maharashtra in a fast pace of development like never before. उनका कहना है कि डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त रफ्तार से जा रहा है. We have never seen development like this. You talk about Mumbai everywhere. Yes, Arshad Azmi ji. शिवानी जी का कहना तो ठीक ही है कि किसी भी स्टेट या सिटी का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वो डेवलपमेंट जो पिछले कई सालों से, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र जो है वो कोई डेवलपमेंट में नया नहीं है, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, चाहे
अभी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएसटी, जितनी भी चीजें आप लेंगे, अगर दूसरे स्टेट से उसका मुकाबला करेंगे तो महाराष्ट्र या तो उनके बराबर रहा है या तो उनके आगे रहा है। लेकिन इन्होंने जो कहा कि अब वो होगा, तो अब कैसे होगा? आप तो महाराष्ट्र जो डेवलप की राह पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था, अभी हाल ही में 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे। किसी भी सिटी या स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें नए प्रोजेक्ट कितने कौन आ से रहे हैं, दुनिया में है अरशद भाई? नए, सुनिए मेरी बात, उसमें नए प्रोजेक्ट कितने आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट आने से न सिर्फ वो प्रोजेक्ट लगता है, बिजनेस बढ़ता है, बल्कि वहां के जो इलाकाई लोग होते हैं, स्थानिक लोगों को रोजगार भी मिलता है, नौकरियां भी मिलती हैं। तो वेदांता, फॉक्सकॉन जैसे, टाटा एयरबेस जैसे प्रोजेक्ट तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप ने वो गुजरात भेज दिए। कौन से डेवलपमेंट कौन सा दुनिया में? होगा? पुराने डेवलपमेंट तो देखिए, कंक्रीट के रोड अभी मुंबई शहर में बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहा है, ऐसे टनल जो सीवर लाइन है, माइक्रो टनल सीवर लाइन बन रही है। ये सारे प्रोजेक्ट तो पहले से चल ही रहे हैं। इसमें नया क्या है? शिंदे सरकार नया क्या करने वाली है वो तो देखने के लिए बाकी है। और जब मुझे तो संदेह इस बात का है कि जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने उठाकर गुजरात भेज दिए, तो आप कैसे महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं और स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात कर रहे हैं? मुझे तो हैरत हो रही है इस बात पर। और प्रदीप दूसरी मुझे आप बात, पूछ सकते हैं? Yeah, I can hear और you. मैं We are coming to you, sir. एक चीज, हाँ बोलिए। शिवानी जी जरा इसका जवाब दीजिए, then we'll go to तिवारी जी। अरशद भाई, कौन से जमाने में है आप? कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं? थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज रखने का प्रयास करिए। फॉक्सकॉन, वेदांता पुरानी बातें हो गई, कुछ तो नए मुद्दे उठाइए कि जिस पर मुद्दों पर, तर्क पर बात हो। फॉक्सकॉन हो, वेदांता हो, ये सारी कंपनियां कब आने वाली थी स्टेट में? कौन से तारीख को आने वाली थी? कौन से तारीख पर चर्चा हुई थी? कौन से तारीख पर मीटिंग्स हुई थी? कौन से तारीख पर उन्होंने आने से मना कर दिया? कौन से ग्राउंड पर आने से मना कर दिया? एक बार वो तो देख लीजिए, अंदर पर बात करिए। फॉक्सकॉन हो, वेदांता हो, टाटा एयरबस हो, सारी कंपनियों की जो आपने बात करी, मेरी एक दरख्वास्त है, मैं आप नंबर शेयर करिए या फिर नेशन मतलब न्यूज नेशन वालों से मैं आपका नंबर लेती हूँ, नेशन नाउ वालों से मैं आपका नंबर लेती हूँ और सारी चीजें आपको तथ्यों के साथ आपको आपके मोबाइल पर भेज देती हूँ। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, और रही बात कौन सी चीजें स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है शिंदे साहब के नेतृत्व में, फडणवीस साहब के साथ कौन सी चीजें करने वाली है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो नागपुर से गोवा जुड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर समृद्धि महामार्ग जिसकी घोषणा करी थी और जो कि फर्स्ट फेज शिरडी तक शुरू भी हो गया, सेकंड फेज शिरडी से मुंबई तक चलने वाला है, ये सारी चीजें हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अलग अलग फेजेस में आने वाली मुंबई की मेट्रो हो, नागपुर की मेट्रो हो, नागपुर के मेट्रो में आने वाले फेज 2 फेज 3 के प्रोजेक्ट्स हो, बहुत सारी चीजें जो कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर गौर करने वाली चाहिए, वो मतलब कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक सर्वे आया था कि दुनिया में, ये केवल देश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिम्मेदारी के साथ ये विधान कर रही हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा जेसीपीज और अगर वो पोकलैंड की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा दुनिया में जेसीपीज और पोकलैंड का कंसंट्रेशन कहीं पर है, वो मुंबई में है। इतने बड़े पैमाने, दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, दुनिया की, ये दुनिया में सबसे ज्यादा जेसीपीज और पोकलैंड ये मुंबई में है। ये उसी चीज का उदाहरण देते हैं, उसी चीज का सबूत देते हैं कि सबसे बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की बात ये महाराष्ट्र में हो रही है। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब एक मिनट रुकिए आजमी साहब, मैं पहले जरा तिवारी जी से पूछ लूं। इस बात का जवाब अगर आप तुरंत ले लेंगे तो अरे अर्शदीप जी कंप्लीट तो करने दीजिए। शिवानी जी, मैं पहले आई जस्ट ब्रीफली मैं तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आजमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आजमी साहब आपके पास आ रहा हूं। शिवानी जी, we'll just interrupt you for a minute. Your visuals is not clear. Yeah, now it's come back. बोलिए। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था तो वो खराब हो गया। हाँ, बोलिए। अरे सुनिए, मेरा आवाज भी नहीं आया क्या अब तक? Yeah, Bilal, we could hear you. Please go on. किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता है तो वो इस चीज का प्रमाण होता है कि वहां पर
नियर फ्यूचर में या उसी समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो रोजगार भी वहीं पर निर्मित होती है रोजगार की, और जैसे ही रोजगार की निर्मित होती है अर्थव्यवस्था में वो साइकिलिक एक पूरा फीचर होता है। कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, उसकी वजह से कच्चा माल खरीदना, उसकी वजह से रोजगार निर्मित होना, फिर वो जो आया हुआ पैसा है वो वापस अर्थव्यवस्था में घूमना, ये पूरा साइक्लिकल फिनोमेना होता है। सो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जेसीपीस और पोखरण का कॉन्सेंट्रेशन यदि मुंबई में और महाराष्ट्र में है तो ये इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उसके प्रमाण जो है वो हमको हमारी अर्थव्यवस्था में और आंकड़ों में देखने को मिलेंगे। Shivani, Azmi Saab, I'll just come to you. Tiwari Saab, can you briefly tell us about the development phase? Just we are in BJP के हिसाब से we are on the top board track of development. Tiwari Saab, you have seen politics from very minutely, very closely. कैसे देखते हो sir? How you see the present situation? नहीं, शिवानी दानी को मैं पहली बार सुन रहा था, अच्छा लगा। शिवानी दानी उसी लाइन से बात करती है जैसे बीजेपी वाले मोजोरी करते हैं। तो सुब्बाराव साहब ने अभी के बजट के बारे में बोला, लेकिन रास्ते तो बने हैं, रास्ता बना है, समृद्धि बनी है, मेट्रो आए है, तो ये तो सब चीजें हुई है, इसके बारे में मैं डिनाई विनाई नहीं करता। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि रोजगार के अवसर उपस्थित किए प्रदीप, वो नहीं हुए ना। रोजगार बेरोजगारी जिना चढते एक 2 मिनिट द्या। 1 मिनिट थोडस मला बोलू द्या दादी, वो तुम्ही बोला बेटा। बोलिए तिवारी जी बोलिए। हाँ, वयाने मोठा माणूस असला तर बोलायचं नसतं मला। मैं बोल रहा हूँ कि यह सब बातें बहुत खुल के आने वाली है। देखो, वेदांत फॉक्सकॉन ये पुरानी बात हो गई बोलते, अभी इनको बताता हूँ मैं कि ये किस दुनिया में जी रहे। ये प्लांट अभी गुजरात में लगा भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एमओयू साइन होने के बाद गया, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ महाराष्ट्र की रुकी। इन्होंने एमओयू साइन किए दावोस में जाके, और सारे एमओयू इंडिया के थे, तो क्या कर रहे हो आप? ऊपर से मैं बता रहा हूँ एग्रेरियन क्राइसिस वैसे ही बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उद्धव जी के 2.5 साल के अंदर इस मुद्दों में कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस, रूरल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, और महाराष्ट्र उसमें ज्यादा सफर हो रहा है। अभी ये लोग इतनी बातें करते थे कि हमारी सरकार से तो ये करप्शन हुआ, वो करप्शन हुआ, अब ये कर क्या रहे ये? केवल करप्शन से भरी हुई सरकार है, ब्यूरोक्रेसी पूरा का पूरी सरकार चला रही है, एक भी डिसीजन हो नहीं रहा है। मेरे तो बीजेपी के जितने मित्र है वो बोलते हैं कि सरकार नहीं है ये, तो सरकार है ही नहीं। और बड़ी बेदर्दी से अपमानित किया गया देवेंद्र को, जिसने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाके पूरी सरकार गिराई। वो सरकार गिराने के बाद उसको एट द 11th आवर बोला गया कि आप डेप्यूटी सीएम हो जाओ। तो फाइलें डेप्यूटी सीएम साइन करते हैं तो सीएम साइन नहीं करते, सीएम साइन करते तो डेप्यूटी सीएम साइन नहीं करते, हर चीज के रेट लगे हुए हैं। इस प्रकार की सरकार महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। अब तो क्या है कि पहले ईडी थी, सीबीआई था, फिर बीच में एनआईए आया था, बाद में एनसीपी भी आ गई थी, अब ईसीआई आ चुका है। तो ये सब लोग मिलकर सरकार चलाने को देख रहे हैं, लेकिन नहीं चलेगी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि शिवानी दानी ये बात बता दे कि नागपुर के विदर्भ से उन्होंने कौन सी चुनाव जीता। इतना अच्छा तुमने काम किया तो आपको इतना रिजेक्शन क्यों है? आपको आपकी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी चले जाती है, आपकी टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी चले जाती है, आप कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अभी हमारा आपने पार्टी छीन ली है, चुनाव चिन्ह छीन लिया है। उसके बाद मैं बता रहा हूं अगले सीएम उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। ये पत्थर की लकीर है। प्रदीप, आपने भी लिख के रखना, बहुत दिनों के बाद आपके साथ बैठा हूं, लेकिन मैं जो बोलता हूं क्योंकि मेरा सारा जीवन बीजेपी के साथ ही गया है। मैं तो आरएसएस का प्रचारक और बीजेपी का फुल टाइमर रह के आया हूं, लेकिन ये बीजेपी भी नहीं थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा में मैं था। अभी मोदी जी ने कहा मैंने लाल चौक पर वो किया, मैंने श्रीनगर में किया। अरे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में सब हुआ था, उनका तो नाम ले लेते। देखो, बीजेपी एक अंतर्द्वंद से जा रही है। अभी भी मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में एक
बड़ा नेता है जो पूरे भारत के बीजेपी का द्वंद्व और सरकार के क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है, वो नितिन गडकरी है। और सत्ता के सूत्र और महाराष्ट्र की क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए नितिन गडकरी को इनिशिएट करना चाहिए और आरएसएस ने पूरी बीजेपी की बात को संभालना चाहिए। लेकिन आपने जो बोला ना शिवानी जी कि ये डेवलपमेंट का मॉडल है, ये डेवलपमेंट का मॉडल अफ्रीका में भी है, लेकिन भुखमरी वैसी है, ये बीओटी का है। हाँ, एक मेट्रो का प्रोजेक्ट या एक समृद्धि मार्ग, इसमें कमीशन कितना जाता है तुमको मालूम है? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। अरे 5,000 करोड़ में आपने सरकार गिराई, कहां से आए पैसे? ये आप बताइए ना मुझे। हाँ, आप तो इकोनॉमिक्स भी जानती है, आप तो कॉर्पोरेट का नॉलेज रखती है। करप्शन तो करप्शन होता है ना, करप्शन तो करप्शन होता है। और मुझे नहीं लगा था कि गंगाधर राव फडणवीस का बेटा हाँ इस प्रकार की बातों में आएगा। मैं तुम्हें तो कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, मैं ये करप्शन आंखों से देख रहा हूँ। मैं आप अगर आप ज्यादा डिस्कशन में जाती है तो मैं पार्टीज के नाम गिना दूंगा। हाँ, आप मुझे डिफॉर्मेशन में लेके जाना, लेकिन सरकार की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है। आपके मेट्रो में बैठने वाले लोग नहीं है, हाँ, आपके समृद्धि मार्ग में चलने वाले लोग नहीं है। जितना डीजल का खर्चा आता है उतना ही टोल का खर्चा है। आप समझती क्यों नहीं बात को? हाँ, बम्बई को जाने को पहले 4 रोड थे, वहां जो टोल थे उसके आर्बिट्रेशन कितने क्या है? 6 लाख करोड़ का आर्बिट्रेशन। आप ये क्यों नहीं बोलते कि खरे ताड़ कुंटे का एक आर्बिट्रेशन 5 करोड़ का था, जिसके 291 करोड़ रुपीस आपने देने का वादा किया है। आपके साथ ना सुप्रीम कोर्ट है, ना कुछ है। हाँ, हर तक बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका है। Tiwari साहब will allow शिवानी to just respond to that. शिवानी जी बोलिए, because तिवारी जी ने पूरे आंकड़े बताए आपको किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, बट करप्शन इस प्रकार से फैला हुआ है। एक चीज उन्होंने गिन के आपको बताया, और तिवारी जी हैज बीन विद द बीजेपी अर्लियर। बोलिए शिवानी जी। तिवारी अंकल बहुत सीनियर है, बहुत सालों से उनको सुनते हुए और देखते हुए आई हूँ, मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसी को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तिवारी जी, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, चूंकि मैं नागपुर से हूँ, नितिन जी के मुंह से ये सारे आंकड़े हम इतने बड़े बड़े सुनते आए हैं, तो हमको वैसे इतने बड़े आंकड़े सुनने की वैसे आदत है। लेकिन कम से कम हमारी सरकार, जब आप 10,000 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, कम से कम देवेंद्र फडणवीस की सरकार 100 करोड़ की वसूली के आदेश तो नहीं निकालती। कम से कम हर यहाँ से इतने करोड़ की वसूली होनी चाहिए, उतने करोड़ की वसूली होनी चाहिए, इसके आदेश तो नहीं निकलते। कोई तो भी व्यक्ति के घर के सामने गाड़ियां रखकर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी धमकियां तो नहीं दी जा रही। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में रखने का प्रयास तो हम कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं तिवारी अंकल? आप देखिए तिवारी जी, मेट्रो की अगर बात करेंगे कि मेट्रो में चलने के लिए लोग नहीं है, आप एक बार मेरे साथ मेट्रो में चलिए, नागपुर छोड़िए, मुंबई की मेट्रो चलिए, 1 लाख लोग रोज के सफर कर रहे हैं। नागपुर में हमारा हाईएस्ट जो मेट्रो का ट्रैवल नंबर जो गया था, पैसेंजर्स का नंबर 1,60,000 जा चुका है। 1 लाख लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि केवल फेज 1 एक्टिव हुई है। फेज 2 फेज 3 जब एक्टिव होगी तो न जाने ये नंबर कितना बड़ा होगा। समृद्धि के ऊपर चलने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे अनुमति तो दे दीजिए। तिवारी साहब, let us finish for 2 minutes and then बोलिए शिवानी जी। In a couple of minutes, not even 2. Yes. तिवारी जी, मैं विदर्भ से आती हूँ। गढ़चिरौली समान ऐसे एक क्षेत्र के बाजू में मैं रहती हूँ, भंडारा गोंदिया समान जगह के ऐसे बाजू में मैं रहती हूँ कि जहाँ से हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा हम संतरा बनाते थे, लेकिन मुंबई जाते जाते हमारा संतरा पेरिशेबल होने की वजह से वहाँ का जूस हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। सो ऐसे सारे परिप्रेक्ष्य में, ऐसे सारे परिस्थिति में जब समृद्धि हाईवे हमको मिला है कि जब हम 5 घंटों में, 5.5 घंटों में शिरडी तक का रास्ता पार कर सकते हैं, और आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में जब वो पूरा मुंबई तक पहुंच जाएगा, तो हमको मुंबई तक पहुंचने के जो 8 और 9 घंटे का जो समय लगने वाला है, हो सकता होगा। देखिए, नेता वही होता है जो 1 जनरेशन और 2 जनरेशन आगे की सोचे। हमारे नितिन गडकरी हो या हमारे देवेंद्र फडणवीस हो और आज एकनाथ शिंदे जी हो, हम अगली जनरेशन के बारे में सोचना जानते हैं। तिवारी जी, मेरे से 1 जनरेशन आप सीनियर है,
मेरे ये मेट्रो हो या समृद्धि हाईवे हो या ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बन रही है, ये आपके और मेरे लिए, हमारे अगले जनरेशन के लिए। नहीं तो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। पुणे में हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स पहले आ गए और रास्ते पर 1.5 घंटे का 2-2 घंटे का कंजेस्शन है। ये प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जगह का हो। आपने अमेरिका की बात की कि वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और भूखमरी के आंकड़े क्या है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ईपीएफओ के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो 2014 से 2023 तक ईपीएफओ के आंकड़ों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना। जब 3 गुना आंकड़े बढ़ते हैं, और ये इकोनॉमिक सर्वे में छपे हुए आंकड़े, ये मैंने बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के रिपोर्ट्स में हर महीने में जो बुलेटिन आता है, हर क्वार्टर में जो रिव्यू आता है, उसमें से निकले हुए आंकड़े कि ईपीएफओ में रजिस्टर्ड आंकड़े ये 3 गुना बढ़े। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम ये पिछले 8 साल में अच्छा खासा बढ़ते हुए हमने देखा है। सो ये प्रमाण है कि हमारे यहाँ पर चीजें बदल रही है, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप कहेंगे कि वापस मैं वही कह रही हूँ, लेकिन हर एक चीज की बॉटम लाइन यही है, यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता तो किसी भी सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स नहीं बढ़ सकते। और बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ ये बताते हुए कि 5 साल जब, एक ही मिनट भाई, मुझे 1 मिनट में खत्म करने दीजिए। आई जस्ट फिनिश इट विद दिस पॉइंट कि 2014 से 2019 में ये एक बार ऐसे कुछ राज्य है, कर्नाटक में, गुजरात ने 1-2 बार ये किया है। महाराष्ट्र ने पूरे अपने इतिहास में केवल एक बार रेवेन्यू सरप्लस हमारा स्टेट हुआ था। और वो बताते हुए मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में, सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट संभला था और एक बार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आया था। अब हम लोग जब कल ये अर्थसंकल्प प्रस्तुत करेंगे आने वाले हफ्ते में, जब हम शिवानी जी, प्रस्तुत करेंगे, तिवारी साहब, कैन वी जस्ट अलाउ आजमी साहब आल्सो टू, ओके, बोलिए। आंकड़े देखने लायक होंगे। सो तिवारी जी, ये सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगले 2-3 जनरेशन के लिए, करप्शन आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं। एंटी करप्शन में फाइल कर दीजिए, शायद 1-2 सापड़े लगाकर हम लोग 2-4 लोगों को पकड़वा भी लेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सारी चीजें बहुत धड़ल्ले से चालू है, जो अगले 2-3 जनरेशन को बहुत ज्यादा समृद्धि देगी। सर तिवारी जी, मैं जरा आजमी साहब को भी ले लेता हूं, बिकॉज आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा, राहुल जी ने कहा कि प्रॉब्ली आफ्टर द रायपुर सेशन, भारत जोड़ो यात्रा का सफलता के बाद और एक, शायद आजमी साहब, और एक यात्रा होगा। और जैसे राहुल जी कहते हैं कि हमारे जो प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई हमारा सुनता नहीं है, इसका जवाब कोई देता नहीं है, ना मोदी साहब देते हैं, ना पार्लियामेंट में मेरा आवाज। तो कैसे देखते हो? आजमी साहब बोलिए। हाँ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की एक भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से होने जा रहा है, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन साहब, मैं 1 मिनट वापस आता हूँ। मैडम, जो शिवानी मैडम ने जो बहुत सारे आंकड़े गिनाए कि वो समृद्धि मार्ग और कौन कौन से मार्ग के आंकड़े गिनाए, उन्होंने बताया कि मुंबई शहर में पोकलेन और जीसीबी की बहुत भरमार है। मुझे समझ में नहीं आया इसमें शिंदे सरकार का क्या योगदान है। आज जो एक्सप्रेस हाईवेज जो मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, अगर मैडम जो है नितिन गडकरी जी का एक थोड़े ही दिन पहले का एक इंटरव्यू पढ़ेगी तो सुनेगी, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उसमें नितिन गडकरी जी ने एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया था कि किस तरह से उन्होंने सारी सुविधाएं दी और ये किया, और आज उसी का नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्रेस हाईवे इतने बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। ये कोई 2-4-5 साल का काम नहीं है। पिछले 2000 से आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों को बनाने की एक क्रांति आई है, और ये बोलना पड़ेगा कि नितिन गडकरी जी ने उसमें उस गति को और उस दिशा को और गति दे दी। ये कोई बोलने में हर्ज नहीं है। वो पूरी सरकार में वही एक मंत्री दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने कमिटमेंट को कम से कम पूरा तो किया है। दूसरी एक बात मैं ये बता दूं, अभी उन्होंने कहा कि वो पॉक्सॉन और वो सब पुरानी बातें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। 1 लाख लोगों को खाली वेदांता में नौकरी मिली होती, 1 लाख महाराष्ट्र के लोगों को आपने नौकरी से बाहर कर दिया, वंचित रख दिया। और एक छोटी सी बात उनको बता देता हूँ, वो बहुत ज्यादा फडणवीस जी और उनकी बातें कर रही थी। अभी नेशनल बजट आया था, रेलवे, मुंबई का जो रेलवे है, लोकल ट्रेन जो है, उसमें रोजाना तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग उसमें सफर करते हैं। 80 लाख के करीब लोग सफर करते हैं रोजाना, 80 लाख। तो अभी रेलवे का बजट आया था, आप जानते हैं नेशनल रेलवे बजट में मुंबई शहर को कितना पैसा मिला है?
10 करोड़ रुपया सिर्फ मिला है। जो ट्रेनें बाहर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, उनके जो रेलवे स्टेशन है यहाँ सीएसटी में 12, 13 और 14 नंबर के जो प्लेटफॉर्म है उनको बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये तो सोच है भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे सरकार की कि मुंबई जैसी लोकल ट्रेन को नेशनल बजट में कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है जीएसटी का या किसी भी चीज का ले लीजिए वो मुंबई और महाराष्ट्र से ही केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सौतेला सलूक जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है मुंबई शहर और महाराष्ट्र के साथ भी। मुझे ये बताइए शिंदे सरकार सिवाय भारतीय जनता पार्टी की एक कठपुतली के और क्या है? क्या देश का कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त करेगा कि उसके सामने उसके प्रदेश के प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेश में भेज दिए जाए? लेकिन एक कठपुतली सरकार है। ये सब होता हुआ देख भी शिंदे सरकार और मुख्यमंत्री जी खामोश बैठे रहे, तो उनके बारे में क्या बात की जा सकती है? आंकड़े तो हर दौर में बढ़ते ही हैं। आज खर्चा 10 रुपया था तो कल बढ़ के 20 रुपया हो जाएगा। ये सब बातें तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो विकास की नीयत होती है, जो विकास करने का एक टारगेट होता है, वो टारगेट शिंदे सरकार में कहीं दिखाई नहीं देता। आगे आने वाले दिनों में वो सिद्ध कर पाएंगे ऐसा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि फडणवीस जी जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ शिंदे जी की लोकप्रियता आगे बढ़ जाए। तिवारी जी, you can जिस प्रकार से आपने कहा कि डेवलपमेंट इज फुल ऑफ करप्शन, तिवारी जी, you wanted to talk about Shivani Dani's claims about the Maharashtra's great leap, Mumbai's great leap. तो आप क्या बोलना चाहते थे उसके? शिवानी, देखो, शिवानी दानी इवेंट पहली दूसरी बार कर रही है, तो उसको मैं इनकरेज करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कैसा होता है कि उन्होंने एक बात बोली 100 करोड़ की, तो वो अगर पढ़ी लिखी बेटी है तो उन्होंने ऑर्डर पे पढ़ लेना। देखो, भारत में प्रदीप है ना, पैसे देने वाला कभी बोलता ही नहीं मैं पैसे देता हूँ, पर बड़ी विचित्र परिस्थिति है भारत में। और पैसे लेने वाला कभी लिया करके बोलता नहीं। तो वो 100 करोड़ के अंदर जो ऑर्डर पास हुई, या तुम देखो संजय राउत को जो रखा, तो इनको तो 13 महीने रखा, संजय राउत को 100 दिन रखा, तो उसमें सब में ये ऑर्डर आई कि इन्होंने पैसे खाए नहीं, इनको काय को पड़ गेला है, जो खाए वो तो बाहर घूम रहे। तो इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का अहंकार है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अहंकार से हम उनसे दूर गए, लेकिन हमने उनको डॉच किया तो उन्होंने हमको डॉच किया। हमारे 80% लोग लेके चले गए। लेकिन हमने जो नए समीकरण बनाए हैं, उस समीकरण में सी वोटर का सर्वे आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अभी तो 44 सीट का आ गया है, 44 सीट ये लोकसभा की जाएगी, तो अपोजिशन में जाएगी, मोदी के पास नहीं रहेगी, और 4 सीटें उनकी आई। तो अभी जो इक्वेशन है वंचित, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये जो है, ये जो इनका जो फ्री एवरीथिंग फ्री टू ऑल, तो ये सब तो चल रहा है। अभी मोदी जी अगर विकास करते, किसान की आमदनी दुगनी करते, तो किसान को 2000 रुपया देते नहीं, लोगों को फ्री अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 75,000 नौकरियां लाने वाले थे, मुझे मालूम पड़ा 750 भी नहीं हुई। और अभी अभी इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनियां जो है वो 5 साल से आ रही है, और 5 साल से एमओयू साइन कर रही है। तो एमओयू साइन करने वाली भी हैदराबाद की कंपनी, नासिक की कंपनी। तो जनता को आप गुमराह कर सकते हो, और जनता को आप यू कैनॉट फूल द पीपल ऑलवेज। तो जो कुछ रिजल्ट आने थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ बताने की थी, जो ट्रांसपेरेंसी बताने की थी, क्या होता है अगर आप 2000-3000 करोड़ वगैरह के प्रोजेक्ट लाते हो, तो उसमें करप्शन पे बहुत चर्चा होती है। 2 लाख का प्रोजेक्ट लेके आ जाओ तो करप्शन पे बिल्कुल चर्चा नहीं होती। मैं तो अभी देखता हूँ कि नितिन गडकरी के अलावा कोई हिम्मत से ये नहीं बोल पा रहा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर सामने आ जाए और कहे कि मैंने इतना % दिया। अभी तो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आके बोलते हैं कि भैया इतने % देकर भी प्रोजेक्ट में इतनी तकलीफ हो रही है। अब देखिए, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट, पूरे के पूरे रोड बेच डाले हैं। अभी आप बताइए, देखिए प्रदीप जी, 43 लाख करोड़ का इन्होंने बजटरी एक्सपेंसेस दिए हैं, और रेवेन्यू अर्निंग इन्होंने
बाद इन्होंने बहुत सारे कर्जे वर्जे बताए हैं, लेकिन मुझे एक बताइए, नेट डेफिसिट 7 लाख करोड़ का रहते हुए मोदी मीडिया शाम के वक्त कह रही थी क्या बजट है, क्या बजट है, क्या बजट है। अरे वो सेल्समैन गर्ल्स को क्या समझेगा। मैं अभी बता रहा हूं कि निर्मला सीतारमन ने जो बजट दिया उसका बहुत अच्छा एनालिसिस पुराने गवर्नर आरबीआई के इन्होंने किया है। किस मूर्ख आदमी ने ये इनको बताया था कि इस प्रकार प्रोजेक्ट करना है। मुझे बताइए, एग्रीकल्चर आउटले का कुछ नहीं बताया, रूरल इकोनॉमी का कुछ नहीं बनाया, नरेगा का प्रोजेक्ट हरा दिया, अभी हेल्थ और एजुकेशन पे तो पैसे कम कर दिए। अरे आप वेलफेयर स्टेट है या नहीं? आप पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कन्वेंस ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। अरे भारत में बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग आपके इसमें बढ़ गए तो आपके सारे डेवलपमेंट के क्लेम ऐसी तैसी कराने जाते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कि इकोनॉमिकली मोदी जी फेल हो गए और 10 साल के बाद मोदी जी का क्रिटिकल इवोल्यूशन होने वाला है। तिवारी जी, मोदी जी पार्लियामेंट में छाती ठोक कर बोले कि पीएम किसान योजना से 11 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, घर हमने 3 करोड़ लोगों को दे दिए, गैस कनेक्शन 9 करोड़ लोगों को दे दिए, टॉयलेट्स 11 करोड़ लोगों को हमने टॉयलेट बांध के दिए, आयुष्मान भारत का 2 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, हर घर में नल से जल, यानी उन्होंने इतना सारा स्कीम्स। एक मिनट प्रदीप जी, बोलिए सर। प्रदीप जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए ना सर, बोलिए ना सर। देखिए 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ घर बने नहीं। ये क्या करते हैं, 2.5 लाख रुपए शहर में देते हैं, ग्रामीण में 1.5 लाख देते हैं। मुझे बताइए ग्रामीण में क्या सस्ता मिलता है? सीमेंट, ईंट, लोहा, रेती में तो ये सब माफिया बने। अभी मैं बता रहा हूं कि घर पूरे हुए नहीं, टॉयलेट के हाल क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने आयुष्मान योजना बोली, इसके लाभार्थी के क्या हाल है मैं बताता हूं। और पैरेलल स्कीम के अंदर प्राइवेट दवाखाने कैसे बना रहे। मोदी जी खुद प्रामाणिकता से कह रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो रोजी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस पर बोल रहे हैं। देखो 9 करोड़ कनेक्शन में से 7 करोड़ कनेक्शन जो साल में 6 बार भरना चाहिए वो भरे नहीं जा रहे। इसका मतलब लोग लकड़ी जला रहे हैं। इन्होंने जितने भी क्लेम करे हैं, देखो आपने 250 रुपए जो था उसको 1000 रुपया कर दिया गैस का कनेक्शन, तो गरीब नहीं ले पाएगा। मेरी माँ ऐसी करती थी, मेरी बहनें ये करती थी। अरे भाई ग्राउंड में क्या पोजीशन। नल योजना, इनकी अमृत योजना विदर्भ के अंदर यवतमाल में पानी नहीं दे पा रही। यवतमाल अकेला नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर न अमृत योजना का अमृत ये ठेकेदार ले गए और पूरा विश्व लोगों को जोड़ दिया। दानी जी को मालूम ही नहीं कि अमृत में कितना अमृत किसने पिया। मैं अभी बता रहा हूँ मोदी जी प्रामाणिक आदमी है। मोदी जी को जो बताया जाता है वो करते। मुद्रा योजना में किसी को ही पैसा नहीं मिला। मुद्रा योजना की ऐसी तैसी हो गई। एक्सिस्टिंग करंट अकाउंट को मुद्रा में बता के बैंकों ने बताया। नेशनलाइज्ड बैंकों की क्या हाल है। बैंकों के पास खुद के एम्प्लॉइज को पगार देने को पैसा नहीं। प्रदीप जी मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ बजट का। इन्होंने सब्सिडीज की बात की, केवल अनाज की और देखो कोई दुनिया के हम सबके आखिरी देश है जो हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में दुनिया भरे का प्राइवेटाइजेशन कर बैठे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि गरीबों को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे हम लोगों की तबीयत भी तो जान नहीं पाते। हमको फ्लोराइड से पानी कितना गंदा हुआ ये भी इनके पास नहीं है। कितने स्रोत से शुद्ध पानी दिया जा रहा ये भी नहीं मालूम है। और कम से कम मोदी जी एक व्हाइट पेपर लेके आ जाए जो उन्होंने बोला था। अरे मोदी सबको पुरजाएगा, छाती ठोक ठोक के। उनके जितने क्लेम है उतने कितने फुलफिल हुए। मोदी जी चुनाव हारने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे। इसके लिए आपको 24 के अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। मोदी जी बोलेंगे मैंने इतना किया और अंबानी अडानी जी आप कुछ नहीं कर पाए। तो
ये तो सब होने वाला है। मैंने मनमोहन सिंह के भी खिलाफ में संघर्ष किया, राजू और तुमने मिलके मुझे बहुत साथ दी थी, लेकिन परिस्थितियां बदली नहीं करके मैं बोल रहा हूँ। मेरा कोई इनसे झगड़ा थोड़ी है। ये लोग दाम्भिक है, ये लोग पाखंडी है, हिपोक्रेसी टॉप पर गई है, करप्शन करते हैं, ऊपर से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। इससे मुझे बुरा लगता है। आप पैसे खा रहे ना तो बोलिए, हम खा रहे बाबा, लेकिन हमको कांग्रेस से कम खा रहे, तो ये कांग्रेस से कम भी खा रहे नहीं, ज्यादा खा रहे, और ऊपर से उनको परिवारवाद की बात कर रहे। यहाँ तो सारा परिवारवाद है, टीवी पे आने वाले पैनलिस्ट से लेके सारा परिवारवाद है। और सारा परिवारवाद, लोग ही परिवारवाद में जाते, लोग चुन के देते। लोगों ने भी जो अच्छे कार्यकर्ता है, अरशद आजमी तरीके, इनको चुन के देना चाहिए, लेकिन लोग ही पैसे लेके वोटिंग करते। और बीजेपी तो अभी पूरे गांव के गांव खरीदते। बीजेपी का नया फंडा है। हाँ, मुझे लगता है शिवानी दानी को मालूम नहीं है। शिवानी, मैं सर शिवानी जी से पूछ रहे थे, बिकॉज आई मीन आपने भी और आजमी साहब ने भी बहुत इल्जाम लगाया है बीजेपी पे। इज शिवानी जी ऑन द लाइन? शिवानी जी, कैन यू हियर मी? नहीं, वो चली गई होंगी, वो चली। ओके, ओके सर, तो सर व्हाट इज दिस? जिस प्रकार से आपने जो आरोप लगाए हैं कि पीपल आर बीइंग टारगेटेड हु क्वेश्चन द गवर्नमेंट, जो भी क्वेश्चन गवर्नमेंट को करता है कि ये कैसे उनको, जैसे आपने संजय राउत के बात किए, मुंबई में जितेंद्र अवार्ड जिस प्रकार से टारगेट हो गए, lot of people, do you think this government is after people who are talking, pointing out issues, एक totalitarian तरीके से हर चीज चल रहा है? How do you see it, sir? I mean, if you see the wider thing, कल सिसोदिया भी अरेस्ट हो गए वहां पर, are the people who are asking the right questions being harassed by enforcement agencies? कैसे देखते हो तिवारी जी? अरे ये देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बीजेपी के शीर्षस्थ नेता जो पंतप्रधान के रेस में थे उनसे बात करता हूं, तो वो कहते इंदिरा जी ने डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई थी, मोदी शाह ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई है। देखिए, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अब हम लोग तो आलोचना करते हैं, तो प्रदीप तुम मुझे अभी बुला ले रहे हो, बाद में तो मेरा फोन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी जेल में जाने वाला हूँ। हमारे संजय राउत जाके आए, और जो लोगों को नोटिस दिया था 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, वो लोग शिफ्ट हो गए, उधर शिफ्ट हो गए, तो वो पास साफ हो गए। अनिल देशमुख का तो एक क्लासिक एग्जांपल है। 13 महीने 72 साल के नेता को जेल में रखा, और सुनी सुनाई बातों से, परमवीर कहते थे ये तो सुनी सुनाई बातें थे, मुझे बोला गया है। अरे कौन पैसे मांगेगा, और ऐसा कैसा टारगेट हो सकता? अरे किसी को, कोई भी सरकार में मिनिस्टर कुछ नहीं बोल सकते। मिनिस्टर बेचारे जो देता है वो ले लेते हैं। रेट तो बंधे हुए है ना, ट्रांसफर के रेट बंधे हुए। और रेट किसने बांधे थे? पहले 5 साल सरकार किसकी थी, आप मुझे बताइए। देवेंद्र के वक्त सब ट्रांसफर के रेट बढ़ा दिए गए थे। अब उसके लाइन में इन्होंने कुछ किया होगा, तो एक कांस्टेबल या एक डीजी या एक डीसी डीएसपी आके तो बोल दे कि हमने पैसे दिए, या एक दारू के बार वाला बोल दे, या डांस बार वाला बोल दे कि हमने पैसे दिए। किसी ने नहीं बोला। सुनी सुनाई बात से उस आदमी को 13 महीने जेल में रखे, उसके स्कूल के कॉलेज बंद कर दिए, उसके परिवार में टॉयलेट देख देख के परेशान हो गए ईडी वाले, और टॉयलेट को खोद डाला, जहाँ पैसे समझ के, और पूरा मसाला बाहर निकाल दिया। ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। सर आज एक सनसनीखेज स्थिति है कि एकनाथ शिंदे जी ने बोला है कि MVA was going to arrest गिरीश महाजन एंड देव फडणवीस। MVA तो कितना सच्चाई है उसमें? बिकॉज एकनाथ शिंदे जी बोल रहे कि मैं खुद, सर उससे पहले शिवानी इज कम बैक ऑन द लाइन। शिवानी, यू नो अरशद आजमी ने कुछ बोले, किशोर तिवारी जी ने बहुत कुछ बोले। इज कैन यू, इफ यू वांट प्लीज बोलिए। सर आई जस्ट couldn't listen तिवारी अंकल और अरशद भाई क्या बात किए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। लेकिन मैं यहाँ तक सुनी थी अरशद भाई का कि जब वो कह रहे थे कि कुछ 10 करोड़ रुपए से मुंबई को दिए, सो मैं वो डॉक्यूमेंट ढूंढने गई थी बजट का, जहाँ पर मुझे दिखा है कि मुंबई मेट्रो के लिए 500 करोड़ दिए, और नागपुर मेट्रो के लिए 118 करोड़ दिए, मुंबई रेलवेज के लिए 280 करोड़ दिए। सो दिस फिगर्स आर देयर। टोटल महाराष्ट्र में इस बजट के में 13-14 हजार करोड़ कुछ तो भी दिए हैं। So I was just searching for the figures.
सर्चिंग फॉर मुंबई दैट लोकल फिगर्स और ट्रेन, फिर वो मैं चली गई। ना बोलिए मुंबई लोकल ट्रेन, आजमी साहब मुंबई आपने बोल लोकल दिया। ट्रेन के बारे में बताइए। अरशद भाई, मुंबई लोकल ट्रेन निस्संदेह उस पर मैंने पढ़ नहीं पाई। मैं जस्ट आई वाज सर्चिंग द बजट डॉक्यूमेंट, लेकिन चलिए, मुंबई रेलवेज के लिए वहां पर 280 करोड़ का प्रावधान है। शिवानी जी, जैसे तिवारी साहब बोले कि आर द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट द गवर्नमेंट बीइंग टारगेटेड, वी सी दैट इन द सेंटर, वी सी दैट इन द स्टेट, इज इट ट्रू? सॉरी जो लोग टारगेट, जो लोग सच्चाई सच बोलते हैं, लोगों उजागर करते हैं, जैसे तिवारी जी बोले कल मेरा भी शायद अरेस्ट हो जाएगा, मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं Because तिवारी अंकल, ये एमबीए की सरकार थोड़ी है कि जो सच बोलेगा उसको अरेस्ट करेंगे। ये शिंदे जी की और फडणवीस जी की सरकार है। बिल्कुल मत डरिए, कुछ लगता है तो कभी भी फोन करिए, जो सच बोलता है उसको अटक नहीं होती, डोंट वरी। No, you want to talk about development और because तिवारी जी ने होम बहुत मिनिस्टर- कुछ प्रश्न होम उठाया है। मिनिस्टर- डेवलपमेंट मॉडल जो आपने बोले नागपुर वगैरह के, तिवारी जी ने उसको क्वेश्चन किया है। अब कौन से पॉइंट पर क्वेश्चन किया वो तो सुन नहीं पाई सर। इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ इट इन अ बिट सो आई कैन आंसर। ओके, अरशद आजमी जी, आप कुछ फडणवीस पूछना साहब चाहते हो? हमारे- बोलिए एक बोलिए। नेहा, अच्छा, एक नेहा सिंह राठौर नाम की एक लोक गायिका है, उसने एक गीत पढ़ दिया, उसे नोटिस दे दिया। कानपुर की रहने वाली थी, कानपुर पुलिस उसे दिल्ली तक जाकर नोटिस देकर आई। एक पत्रकार है केरला का, जो हाथरस की एक घटना के बाद वहां जा रहा था, उसे पकड़कर यूपी सरकार ने जेल में डाल दिया और 28 महीने तक वो जेल में रहा। 5,000 रुपए उसके अकाउंट में दिखाकर, कहीं से बाहर से आए थे 5,000 रुपए, उस 5,000 को बुनियाद बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी सरकार ने 28 महीने उसे जेल में रखा। तो ये बोल रहे हैं कि यूपी, अरे यूपीए की सरकार नहीं है। आज आप बताइए, राहुल गांधी जी को 52 घंटा ईडी ने अपने दफ्तर में बैठाकर अब तक की लॉन्गेस्ट ये पूछताछ थी जो राहुल गांधी के साथ घटी। सोनिया गांधी जी को बुलाकर दफ्तर में पूछताछ, और दसनों लाख करोड़ रुपया लोगों का डुबा देने वाले अडानी पर एक सिंगल सवाल भी नहीं। और यहाँ तक कि मोदी जी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना पूछा था कि मोदी जी, अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, तो उनके बोले हुए सारे स्टेटमेंट को जो है एक्सपंज कर दिया गया। अब इससे ज्यादा हिटलरशाही और इससे ज्यादा तानाशाही तो मुझे नहीं लगता कि देश में कुछ और होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक बात हो जाने दीजिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बात बोलते हैं कि चाइना हमारी भारत में जो घुस आया है तो हम उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो फॉरेन मिनिस्टर का जवाब है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। कल राहुल गांधी जी ने महाधिवेशन में उसका जवाब दिया कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो क्या उस वक्त हिंदुस्तानियों की इकोनॉमी जो थी वो अंग्रेजों से बड़ी थी, लेकिन देश की खातिर लड़े। तो आज ये सब बातें ये एनडीए में हो रही, हंसी आ रही है, पूरी दुनिया हंसी उड़ा रही है। शिवानी जी, want to respond to that? शिवानी जी, respond to that? You want to? ये वो हिटलरशाही की बात करी तो बहुत बहुत ज्यादा 52 घंटों के लिए आपको दर्द हो रहा है सर। वैसे तो बदले की भावना भाजपा और एनडीए सरकार रखता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला दूं कि 2002 के बाद एक वो भी शख्स था कि जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक कई दिनों तक सीबीआई के दफ्तरों में और अलग अलग दफ्तरों में बैठा था, लेकिन उसने चू तक नहीं करा और उसने ये नहीं कहा कि सरकार मुझ पर दबाव डाल रही है, सरकार मुझ पर या सरकार हिटलर बनी बैठी है। सो ये हिटलरगिरी की बात आप ना करें तो बेहतर है। और वो क्या चाइना की बात कर रहे हैं आप सर? कौन से चाइना की बात कर रहे हैं और कौन से आपके राहुल गांधी जी कौन से अधिवेशन में बात कर रहे हैं और कौन से अंग्रेजों की बात कर रहे हैं और कौन सी सारी चीजें बता रहे हैं? वो दिन भूल गए 2008 में इन्हीं लोगों ने चाइना की एक पार्टी के साथ एक हस्ताक्षर करके एक अग्रीमेंट साइन कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और चाइना के साथ जो चाइना बोलेगी, चाइना के लिए जो सकारात्मक चाइना के क्या एग्रीमेंट साइन किया था? एग्रीमेंट बताइए क्या साइन किया चाइना के साथ? क्यों चाइना की पार्टी के साथ चाइना की बता रही हूँ ना, सुनो ना, सुनिए मेरी बात। ना बता रही हूँ, सुनिए 2 मिनट सुनिए, सुनिए आपको मौका मिलेगा। कर रहे थे तो मैंने बात नहीं की, जब आप बात कर रहे थे तो मैंने बिल्कुल आजमी साहब, कम बैक टू यू, डोंट वरी। बोलिए शिवानी जी, बोलिए। Shivani ji, can you hear me? I think we got again some connection problem with Shivani ji. तो तिवारी साहब, what is the situation right now? MVA एक साथ coming, the C voter says you're going to sweep everything.
MBA देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो समीकरण बनते हैं, तो समीकरण में 1+1 11 होता है ना, तो समीकरण बहुत खतरनाक बने हैं। बीजेपी से शिवसेना का दूर जाना, ये जो एकनाथ शिंदे है तो ये तो खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी भी बचा पाएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और वो नेशनल लीडर थे ही नहीं। अब उन्होंने तो 12 लोग ले गए थे, बचे वाले 28 तो इन्होंने भेजे ना। ये तो खुद ही बोलते कि भाई ड्रेस बदल बदल के मिलते थे। तो सरकार गिराई बीजेपी ने, सरकार बनाई बीजेपी ने, और ये सब कुछ किया, यही भी लोगों को पसंद नहीं आया ना। ऐसे थोड़ी सत्ता में आ सकते। बीजेपी को थोड़ा विपक्ष की भूमिका में रहना था। अब हम विपक्ष की भूमिका में, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम फंडामेंटल कोर इश्यूज पे सरकार का कंसंट्रेशन करना चाहते हैं। मोदी जी 28 में अगर मातोश्री नहीं पहुंचते हैं तो मोदी जी तो आउट है, मोदी जी नहीं बच सकते, क्योंकि महाराष्ट्र से 48 कम होंगे, बिहार पूरा साफ हो जाएगा, बंगाल साफ हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश कहां से बचाएगा इनको, मुझे नहीं मालूम। मोदी जी को 140 सीटें ऊपर ही रहना पड़ेगा। अगर वो मोदी जी के दिए हुए प्रॉमिसेस कितने फेल हो गए इकोनॉमिक फ्रंट पर, और अंत्योदय में कितना इनका अपयश रहा, यह बात अगर बता पाए, और बैंक कितने बुरे हाल में है और देश की इकोनॉमी कितनी डोलड्रम में आ चुकी है, ये विपक्ष अच्छी तरीके से बता पाया, तो 10 साल का इनको जो सत्ता में निष्क्रियता है उसकी कीमत देना ही पड़ेगी। और ऐसा होता है ना, मनमोहन सिंह 10 साल रहे, उनको जाना पड़ा, मोदी जी 10 साल रहे और मोदी जी ने केवल बातें बनाई, उनको जाना पड़ेगा। मोदी जी किससे कंपेयर करते मुझे मालूम नहीं, मोदी जी ने कितना बोला है, कितना बोला है। मोदी जी एक बहुत बड़े अहंकार और वलय के बीच में है, उनको ग्राउंड रियलिटी बताने वाला उनके पास है ही नहीं। कौन बोलेगा यार इनको, जो ब्यूरोक्रेट के सहारे, कौन दबंग नेता है बीजेपी में, कौन रह गया बीजेपी में दबंग? 2 ही लोग हैं, वो गुजरात से आए हुए, जो पूरे गुजरात में कर दिया है दिल्ली को। अरे महाराष्ट्र में भी गुजरात के कैडर भर दिए। मैं बहुत ही परेशान हूँ। देश को बचाना है तो कांग्रेस को एक समर्पक भूमिका लेके प्रादेशिक पक्षों की अस्मिता को जिंदा रखना है। हम अब सावरकर जी को पूजनीय मानते, सावरकर जी को हम राष्ट्रभक्त मानते, और कोई सावर जी को ही बोल देगा प्रदीप डरपोक है, माफी मांगते थे। क्या 68 साल हो गए गुजर के सावरकर जी को, कहा है को बोलना? सावरकर जी कोई रेफरेंस है क्या? और आरएसएस को गालियां दे, आरएसएस का क्या लेना देना है? अभी आरएसएस बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, आरएसएस का कोई भी संपर्क नहीं है, आरएसएस के चीफ को कोई मानता नहीं है। आरएसएस ने जितनी लिस्ट दी उसमें से एक को भी मोदी जी ने अपॉइंट नहीं किया। आरएसएस अपने में दुखी है और ये बोलते हैं कि आरएसएस है, सब आरएसएस है। तो अभी टारगेट मोदी शाह को करो, जो हुकुम शाह है, जो देश के प्रजातंत्र को खतरा है, और बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता भी हर्षद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। हम तो आ गए ना, हम इतने हिंदुत्व के इतने गालियां खा के रुके हुए हैं, अब लेकिन अब अकालनिक में आ गए तुम। अब हमको कितना आकवाड़ हो जाता तुम बोलो। सावरकर पकड़ के बोल दिए एक बार। इतने लोग शामिल हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना के, शेगांव में आते आते सावरकर को छेड़ दिया, नाराज हो गए थे हम लोग। ऐसी नाराजी नहीं होना चाहिए। मैं तो राहुल जी को जाके मिल के बोलूंगा कि हमारी थोड़ी सी जो जख्म है उसको मत कुरेदा करो। हाँ, लेकिन हम इस चुनाव में तो मोदी ये टारगेट है, बड़ा लक्ष्य मोदी है, मोदी को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए सबको एक होना है। जेल में कितने को डालेंगे? कुछ नहीं कर सकते ये। हमने सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं, झूठे आरोप लगा के हमको जेल में रखेंगे तो रखेंगे, क्या करेंगे अभी? ये उम्र में जेल में जाना ही अच्छा है। सर तिवारी साहब, उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से सबको बोला कि आपको एक मंच पर आना है और एक मंच से मोदी जी को 2024 में चैलेंज करके हमको चैलेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एक मंच पर हम लोग नहीं आए
तो we after 2024 we going to see a dictator with dictatorial tendencies, an autocrat, total end of democracy, a totalitarian system will prevail. तो और इमीडिएटली आफ्टर दैट कांग्रेस का एक रिएक्शन था, जैसे आजमी साहब को मालूम है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि opposition has to come under one platform, but Congress will lead the opposition. Congress will lead. क्या इस बात से again there will be divisions within the rank and file of the UPA? कैसे देखते हो सर? नहीं नहीं, जो रीजनल पार्टी जहाँ स्ट्रांग है वहाँ कांग्रेस ने उनको स्पेस दे देना। कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस अभी 44 पर रुकी थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस 144 या 180 के बीच में रहेगी, तो कांग्रेस को ड्यू रिस्पेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और कांग्रेस यह नेशनल पार्टी है और कांग्रेस को वोट कितने मिले थे आपको मालूम है क्या? उनको वोट बीजेपी के से थोड़ा ही कम थे ना। तो कांग्रेस को क्या है, अभी उन्होंने कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक आए, श्रीनगर तक, अभी वो पासीघाट से इधर जा रहे हैं। अरे जो आदमी जमीन पे वायसआर जमीन पे घूमे थे तो वायसआर ने क्लियर शूट किया। ये लोग भी जब एक बार नेता जमीन पे आ गया और जिसने राजमहल छोड़ के जमीन पे आ गया, समझना क्रांति होनी है। ये भगवान बुद्ध के वक्त भी था और 2023 के अंदर यह होने ही है। अब पाखंडी लोगों का जमाना गया, वर्ण व्यवस्था का भी जमाना गया। कुछ 2-4 लोग सत्ता में रहेंगे, 2-4 लोग संपत्ति के मालिक रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। वंचित लोगों की सरकारें आएगी, वंचित लोग ही सत्ता में रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो उद्धव जी का नेतृत्व मंजूर करेंगे तो उद्धव जी इतने प्रलोभन नेता है, उन्होंने अपनी लकीर खींची है, वो केंद्र में भी परिवर्तन लाएंगे। बीजेपी को, शिवसेना को छेड़ना महंगा पड़ा। अब हम लौट के जाएंगे तो नहीं, लेकिन बिगाड़ के जाएंगे, ये नक्की है। हमारी पार्टी चिल्ली, हमारे घर पर भी आ गए ये लोग। हाँ, मातोश्री को छीनने का जा रहे हैं। हम बदला लेंगे ना, हम क्यों? अभी हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जो अस्तित्व की लड़ाई समझते नहीं, वो लोग अहंकार में बोलेंगे कि हमारे साथ लीड करो, ये लीड करो, वो लीड करो। 77 के अंदर जैसा सबने अपना अपना सिंबल छोड़ दिया था, वैसा अभी सबने अपनी आइडेंटिटी छोड़कर एक छतरी के अंदर आके और करना चाहिए। इसमें मैं टीआरएस को भी बोल रहा हूँ। आजमी साहब देखो, तिवारी जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया कि ऑपोजिशन यूनिटी हैज टू बी देयर, और उद्धव जी ने भी कॉल किया था ऑपोजिशन यूनिटी हैज टू बी देयर। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जबरदस्त यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग जुड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ के आए, फुली एनर्जाइज, जैसे आप है हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से 2-3-4 मुद्दे में जो बीजेपी बार बार कहती है, बीजेपी कहता है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद में कांग्रेस को अपने डेफिशिएंसी है, नेशनल सिक्योरिटी में कांग्रेस डेफिशिएंट है, उनका कहना है कि डेवलपमेंट में कांग्रेस डेफिशिएंट है, और अपीसमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। तो आजमी साहब, इफ यू वांट टू सी राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द फ्यूचर, और जो भी डिसाइड करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन पहले जो विपक्षी पार्टियों की जो एकता की बात है, तो 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम उस एकता के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये जैसे अभी ये बात तो ये है कि भाई कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय लेवल पर लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है लीड तो उसे ऐसे ही करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई विवाद भी होगा। अच्छा, दूसरी एक बात आ रही, पहला आपने जो सेंटेंस कहा राष्ट्रवाद, तो देखिए राष्ट्रवाद की चादर ओढ़े प्रधानमंत्री जी ने मेरे पूरे 10 सालों में सिर्फ एक ही काम किया, और वो ये काम किया कि एक उद्योगपति को पूरी तरह से उसकी तरक्की के लिए अपने दिन रात झोंक दिए। आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में जिस तरह इस देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ी है, हंगर इंडेक्स में 122 में 107वें नंबर पर हम आ गए। तो राष्ट्रवाद की चादर ओढ़े प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अडानी को कामयाब किया। पर डे 1600 करोड़ रुपए की इनकम है अडानी की उस वक्त, अभी ये हिंडनबर्ग आने के पहले की बात है। और गरीब आदमी कहाँ चला गया? 27 रुपए से नीचे भी उसकी एक दिन की आयु चली गई। तो ये राष्ट्रवाद जो है, ये सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है। राष्ट्रवाद जो होता है वो राष्ट्र के हर आदमी के लिए, उसके लिए तरक्की के लिए दिन रात काम करना और उसके लिए जो मूल सुविधाएं उस तक पहुंचाना, इससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं है।
हमारे तमाम पिछले जो बड़े बड़े नेता गुजरे, जो साधु संत गुजरे, उन्होंने यही पैगाम दिया कि मानवता के लिए काम करना यही राष्ट्रवाद है। तो दूसरी एक बात, आपने जो अपीसमेंट की बात की, देखिए एक बात आप ये समझ लीजिए, अगर आपके घर में 4 लोग हैं, जो आदमी सबसे कमजोर होगा, आपको उसका ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, इसलिए कि अगर उस कमजोर की तरफ आपने ख्याल नहीं किया, आप सबसे बड़े हैं, तो फिर बाकी के लोग भी नहीं करेंगे। अपीसमेंट के नाम पर अगर ये होता साहब कि अपीसमेंट का नाम ये जो होता है, ये मुझे नहीं समझ में आता किस किस्म का अपीसमेंट है। जब 4 तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 तरह के लोग रहते हैं, तो चारों की बात तो करनी ही पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट आपने जो कहा कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम कांग्रेस के ही नेता जैसे मनीष तिवारी जी, उन्होंने एक किताब लिखा था कि 26/11 अटैक्स, एंड उस किताब में उन्होंने खुद बोला था कि मनमोहन सिंह जी का सरकार को कुछ और एग्रेसिव तरीके से रिटेलिएट करना था। तो ये प्रश्न कांग्रेस के लीडर्स ही अंदर से इस प्रश्न को उठा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, ये मैं आपको ये बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है, पुलवामा क्या था, पुलवामा में क्या हुआ, मुझे बताइए। और दुर्भाग्य इस देश का कि उसकी जवाबदेही जिस सरकार को लेनी थी, वो सरकार उस पुलवामा को लेकर इस तरह से लोगों के बीच में आई कि उसके नाम पर वोट तक मांगने लगी। क्या पुलवामा सिक्योरिटी फेलियर नहीं था? क्या उसकी बुनियाद पर इस सरकार को बाहर नहीं चले जाना चाहिए था? तो देखिए, विदेशी ताकतें जो है वो किसी न किसी के, हिंदुस्तान एक शांतिपूर्वक देश है और हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया है। तो बहुत सारी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की शांति को भंग करना चाहती हैं और उसकी इस इमेज को भी तोड़ना चाहती हैं। तो इस तरह के मामले होते हैं। पुलवामा के अटैक के बाद जो है पूरा देश इस बात पर चला गया कि भाई ये अपना जो ये अटैक था, ये हिंदुस्तान पर हमला था, और हकीकत बात है वो हिंदुस्तान पर हमला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे दिन ही उसको अपने एक सभा में पोस्टर लगाकर, उन शहीदों के फोटो लगाकर ये कहा कि क्या आपका पहला वोट, 18 साल के लोगों का पहला वोट क्या इन पुलवामा के शहीदों को नहीं मिलेगा? और दूसरा जुमला उन्होंने कहा कि क्या ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? तो ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पे आज इसका अपना कांग्रेस ने जो जिस तरीके से 60-65 साल देश को चलाया है और जिस तरह पूरी दुनिया में अपना डंका अपने आप को सिद्ध किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोई भी गवर्नेंस की बात हो जाए, जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार में हिंदुस्तान जो है न्यूक्लियर पावर बन गया दुनिया में, तो ये सारी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों के सामने अगर आप मोदी जी की उपलब्धियां लेंगे, 10 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए और देश की पत्रकारिता के लिए क्या जवाब देना ही होता है? तो ये सारी देखिए, ये प्रोपेगेंडा है राष्ट्रवाद का मायने मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं समझती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। जिस तरह अन्ना आंदोलन की वजह से भ्रष्टाचार का पोस्टर कांग्रेस पर चस्पा कर दिया गया था, उसकी वजह से कांग्रेस हारी। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर राजनाथ सिंह भी होते तो तभी भारतीय जनता पार्टी जीती। उस चुनाव को जीतने में प्रधानमंत्री की कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके बाद 2019 में ये पुलवामा का अटैक होना और जिस तरह से जातिवाद और जिस तरह धर्म के नाम पर वोट मांगा गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती। पहले के टाइम में मैं तिवारी जी से पूछ लेता हूं, ये राष्ट्रवाद है, नेशनल सिक्योरिटी है, अपीसमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सिर्फ मोदी जी के ही या बीजेपी का टोटल एक ब्रांड है? हाउ डू यू सी तिवारी जी कि बीजेपी 24 में हिंदू मुसलमान ही चलेगा और मुसलमानों से देश को खतरा है, यही बात चलेगी। क्योंकि उनको एक युद्ध स्तरीय की परिस्थिति भी आएगी कि कुछ चुनाव के अंदर उनको डाइवर्शन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक इश्यूज पे फ्रंटलाइन नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि देखो, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने देश के प्रश्न राहुल जी ने रखे, लेकिन गोदी मीडिया ने उनका एक कोट अनकोट में ही उनको लेके उस पर क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो मूल प्रश्न उन्होंने लोगों के सामने, किसानों के सामने, महिलाओं के सामने रखे, तो वो प्रश्नों से बहुत ज्यादा डेप्थ बढ़ी और कांग्रेस रिवाइव हो गई है और कांग्रेस ही अल्टरनेट दे सकती, ये बात भी हमने मानना चाहिए। हाँ, और कांग्रेस को उसका ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस नेता ने यार हमारी दुखती नस पे पैर नहीं रखना चाहिए। क्या होता है कि सावरकर का इशू हो गया या रीजनलिज्म का इशू हो गया, हमारी हमारी पहली सोच है। हिंदुत्व हमारी सोच है, हिंदुत्व उनकी सोच है। तो अभी कैसा है ब्रॉडर, इसमें जो बहुजन समाज है, ओबीसी लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है, उसके हित की बात होनी चाहिए, उसके हित के लिए ही चुनाव होंगे। और मोदी जी ने ओबीसी कार्ड खेला, लेकिन वो बनिया बन के रह गए और उन्होंने अडानी अंबानी को बहुत फेवर किया। देखो बोफोर्स के अंदर, बोफोर्स के मामले में कुछ निकला नहीं, लेकिन राजू जी की सरकार चली गई। वैसे गौतम अडानी, विनोद अडानी, राजेश अडानी, ये तीनों बंधु मोदी जी को लेके डूबे गई, क्योंकि इतने क्लियरिफिकेशन के बाद भी आज भी 5 लोअर सर्किट लगे। और किसी आदमी की प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूड होना, 80% ओवर वैल्यूड होना, मुझे लगता है ये चाराने हटाने में आ जाएगा, तब मालूम पड़ेगा, तब ये कबूल करेंगे कि एलआईसी डूब गई, एसबीआई डूब गया, बैंक ऑफ बड़ौदा डूब गया। अरे देश बेचने को निकले हैं, उसके बावजूद भी बोलते कि महाशक्ति बन रहे हैं। अरे कहान रख के महाशक्ति थोड़ी बनते, हरास करने को निकले हैं। हाँ, ये बड़े बड़े क्लेम करते हैं 20 लाख करोड़ की प्रोग्रेस, 30 लाख करोड़ की प्रोग्रेस। अरे तुम्हारे बजट में तुमने नहीं बताया 43 लाख का खर्चा और 23 लाख का इनकम, जिससे इनडायरेक्ट टैक्सेस से 19 लाख, डायरेक्ट टैक्सेस से 3 लाख करोड़। अरे मूर्ख बना रहे हैं लोग। तिवारी साहब, द फाइनल वर्ड, आजमी साहब आप कुछ बोलना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे? द फाइनल वर्ड, बिकॉज अभी मुंबई का बीएमसी चुनाव होने वाला है, you know, state elections and 2024 the general elections are going to be held. तो कैसे देखते हो आप कांग्रेस का, क्या कैसे रोल होगा, कांग्रेस किस प्रकार से? बोलिए सर। मैं एक चीज खाली इसके अलावा बोलिए। जो राष्ट्रवाद की आपने बात कही, हाँ, तो देखिए, जब कश्मीर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जी पहुंचे, बिल्कुल, तो वहां उस वक्त वहां पर पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सिर्फ 2000 लोग वहां आएंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, वहां पहले से 40,000 लोग जमा थे। एग्जैक्टली। वो वहां पे जो सिक्योरिटी के लिए जो रोप पार्टी बोल के एक पुलिस के लोग आते थे, वो छोड़कर भाग गए। तो राहुल गांधी जी ने कल अपने महाधिवेशन की तकरीर में ये बात बताई कि वो 40,000 लोग जब उनके साथ तिरंगा लेकर चले और पूरे रास्ते पर तिरंगा लहराते हुए वो आगे बढ़े और जाकर उन्होंने वहां पर तिरंगे को आखिरी दिन पर लाल चौक, जहां पार्टी का हेडक्वार्टर था, वहां फैला दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी जब लोकसभा में आए, तो मोदी जी ने तंज किया कि हमने भी कश्मीर में झंडा फहराया है। राष्ट्रवाद का मतलब मोदी जी समझ ही नहीं पाए। राष्ट्रवाद वो है 22 लोगों के साथ जाकर लाल चौक में झंडा फहराना राष्ट्रवाद नहीं है। 40,000 लोग जो वहीं के हैं, उनके हाथ से वहां पे झंडा फहराना, ये असली राष्ट्रवाद है। और ये बात भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने इस पूरे देश को ये पैगाम दे दिया। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो नाटक, जो ये की चादर ओढ़कर जो ये काम हो रहा था, आज देखिए क्या हो गया। आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी की सरकार को धोखा देकर गिराया गया, क्या ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ, वो महाराष्ट्र जो प्रगतिशील था, जो तरक्की के रास्ते पे चल रहा था, क्या उसकी तरक्की को रोककर महाराष्ट्र के लोगों के साथ चल नहीं हुआ? क्या ये राष्ट्रवाद बताता है? क्या महाराष्ट्र से ले जाकर चीजें गुजरात में शिफ्ट करना ये राष्ट्रवाद बताता है? तो ये राष्ट्रवाद देखिए, इनका एक ढोंग है। आने वाले बीएमसी चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बीएमसी 2024 महाराष्ट्र, आने वाले टाइम में जो बीएमसी चुनाव है, ये बीजेपी और शिंदे ग्रुप के जो लोग हैं, ये सिर्फ इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बार हार जाने का डर है। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो आप यकीन कीजिए, शिंदे ग्रुप तो पूरी तरह साफ हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी करारी हार मिलेगी, क्योंकि पीठ में छुरा भोंकने वाले को मराठी मानुस कभी माफ नहीं करेगा। Fantastic, Arshad Alvi. We'll go to Tiwari ji. Sir, Tiwari ji, what do you see? You got a fantastic analysis all across Maharashtra. BMC चुनाव भी है, 53,000 crore, one of the biggest budgets, and 2024 में there's going to be state elections, Maharashtra as well as general elections. How do you see everything, sir? नहीं, देखिए, अर्शद आजमी ने बराबर बोला कि महाराष्ट्र में टेंडेंसी है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो, उसको अकेला छोड़ दिया, पूरे लोगों को खरीद लिया, सूरत लेके गए, सूरत से फिर उधर त्रिपुरा, आसाम लेके गए, बाद में
इधर लेके आए, गोवा, ये सब बीजेपी शासित राज्य में लाए। लोग आमदार खुद बोल रहे कि हमको पैसे मिले। उसके बाद अभी पार्टी ले ली, सिंबल ले ली, इलेक्शन कमीशन ने जांचनी की, तो जांचनी की वजह से तो अपर हैंड आ चुका है। और देवेंद्र फडणवीस के प्रति जैसे अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के नजर से वो गिर चुके हैं, उससे ज्यादा वो महाराष्ट्र की जनता के नजर में गिर चुके हैं। वो सत्ता के बगैर सो नहीं सकते, ऐसा चित्र निर्माण हो गया। अगर वो चुनाव तो जल्दी लेंगे नहीं हर्षद उनकी क्या हिम्मत है चुनाव लेंगे। वो मोदी जी के जब चुनाव होंगे ना तभी लेंगे। मोदी मोदी करेंगे। अब वो जिस दिन उनको ये मालूम पड़ेगा कि मोदी कार्ड भी चल नहीं रहा। देखो इंदिरा जी को भी चुनाव हारना पड़ा था, राजीव जी को भी हारना पड़ा था। सत्ता में तो आते लेके जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का अहंकार और इस प्रकार का बर्ताव मैंने नहीं देखा। आप प्रजातंत्र की बातें करते हैं और प्रजातंत्र का तो कुछ दिखता नहीं ना। अभी महाराष्ट्र तो क्लासिक एग्जाम्पल है। टीएमसी के बाद और अब मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अरे पॉलिसी बनाने में जेल में डाल सकते क्या? अरे उसने तो पॉलिसी वापस भी ले ली थी। और कोई एक आदमी तो बोले कि मनीष सिसोदिया को 5 पैसे दिए। मैं भी बता रहा हूँ ना, अरे मनोज सिसोदिया का इनोसेंट विक्टिमाइजेशन हो रहा है। सत्येंद्र जैन के बारे में तो एक कुछ कंट्रोवर्सी हुई, जिस पर बीजेपी ने तो बहुत लपटने की बात की, लेकिन अमित शाह के घर से फोन आते थे, अमित शाह को पैसे दिए जाते थे। ये बात जब आई तो अभी सत्येंद्र जैन तो निर्दोष छूट जाएंगे, क्योंकि देश का राजा जहां पर इस प्रकार के बर्ताव में आ जाता है तो सत्येंद्र जैन का मामला पूरा खुलना चाहिए। अमित शाह के घर से फोन आते थे, अमित शाह के पैतृक गांव से फोन आते थे, पैसे पहुंचते थे, सब मालूम पड़ा। बीजेपी को चुनाव में दिया, उसको राज्यसभा में आना था। ये सब कुमार का स्टेटमेंट वगैरह बहुत महंगा पड़ने वाला है। Thanks, Tiwari ji. Thank you so much. We are at the end of the program. Thank you so much. It was very enlightening talking to you. आजमी साहब जबरदस्त, आपके एक फैंटास्टिक स्टडी है, जबरदस्त तरीके से आपसे पेश किया। Thanks both आजमी जी. Thank you Kishore Tiwari ji. Thank you so much for being with us. It was an enlightening experience. The Constitution. We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Whichever party rules, whichever combination comes to control the people, it has to see that the 4 fundamental principles of our Constitution, justice, equality, liberty, and fraternity, is kept intact. Then the Constitution survives, the country survives. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow at the same time with more news that affects Mumbai, Maharashtra, and India. Bye for now.